So Gauss law. Till now we have learned three things in Gauss law. There is something called flux. Okay, flux is calculated with the help of product of three things: intensity of lines, okay, second, the size of area, and the angle between the area vector and the lines. Okay, so flux का हम लोगों ने formula पढ़ा था. Intensity, here we have electric field, so it is electric field intensity. Second, the area, and third, the cos of angle between the two, means the electric field and area vector. और अगर दोनों वेक्टर फॉर्म में ही दिए गए हैं तो वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट एरिया वेक्टर. दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी लेने से हमारा फ्लक्स निकल आता है. ये हम लोगों ने सीखा था. नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि गॉस लॉ सेज कि इफ वी हैव अ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज मींस थ्री डायमेंशनली क्लोज. ड्राइंग में थ्री डायमेंशनली नहीं बना सकते, बट इट इज थ्री डायमेंशनली क्लोज. तीनों तरह से हर साइड से क्लोज्ड है. सो इफ वी हैव अ क्लोज्ड सरफेस and there are some charges inside this, okay, in that case total flux coming out of the surface will be equal to charge inside divided by epsilon naught. ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था. now while studying about this Gauss law, हम लोग भले ही बोल देते हैं कि any closed surface, लेकिन जब भी हम लोग इसका अप्लाई करते हैं, whenever we will apply this to some special situation, Gaussian surface हमेशा चूज किया जाता है in such a way that we can calculate electric flux easily. अगर आप एक रैंडम सा सरफेस ले लेंगे, then it will not be easy to calculate the flux. So always we choose a Gaussian surface in such a way that the calculation of flux must be कन्वीनियंट, वो आसानी से कैलकुलेट किया जा सके. ठीक है. सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इफ वी हैव अ पॉइंट चार्ज, सो हम लोगों ने अपना गॉसियन सरफेस एक स्फीयर चूज किया था विद द चार्ज एट द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर. ठीक है. और उसकी मदद से हम लोगों ने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था. दैट वाज सेम एज के Q upon R square, where R is the distance between this and Q is. ठीक है. So ये फॉर्मूला हम लोग कूलम्स लॉ की मदद से भी कैलकुलेट कर चुके हैं. And here we calculated same formula with the help of Gauss law. ठीक है. Now today we are going to find the electric field due to infinite line charge. If we have infinite line charge, we are going to calculate the electric field. Electric field near infinite line charge. ठीक है. So we have a infinite line charge. ठीक है. Now we already know that electric lines which will come out of this charge will be like this. In all the directions. Not all, means in circular directions. Like this side also it will be there. ऐसे भी निकल रहे होंगे, ऐसे भी निकल रहे होंगे, like a brush. ठीक है. Electric lines ऐसे होते हैं. Now we want to calculate electric field at any point. Let's say at this point. At this point, I want to calculate electric field intensity.
E. So I need to draw a Gaussian surface. So हमें एक Gaussian surface draw करना होगा. So I will draw a Gaussian surface like this. ठीक है, सिलेंडर से. ठीक है, तो I have chosen a Gaussian surface in cylindrical shape. Clear? Now there are three surfaces. One is top surface, one is bottom surface, and one is circular side surfaces. ठीक है? So we need to calculate flux on all these three surfaces. On top इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है. बोथ आर परपेंडिकुलर. सो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर होता है तो फ्लक्स का हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, 0 होगा. कर्व सरफेस पे देखते हैं. सो कर्व सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी उधर ही है. एट एवरी पॉइंट direction of electric field is changing, direction of area is changing, but for every point the direction of electric field and area are same. Okay, so at each point E is parallel to area vector, है ना, दोनों पैरेलल है. So flux will be equal to E का मैग्नीट्यूड इंटू एरिया का मैग्नीट्यूड हो जाएगा. दोनों का मैग्नीट्यूड का को मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट विल बी इक्वल टू E इंटू कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है सिलेंडर के लिए, नहीं आता, 2 pi r into L, where r is the this and L is the length of cylinder. ठीक है, this is phi 1, this is phi 2. On lower नीचे के सरफेस पे भी 0 हो जाएगा. नोट कीजिए. So total flux phi will be equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3, that will be equal to E into 2 pi r L. हेलो सर. यस सर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो क्या सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर. फिर से एक्सप्लेन. हाँ सर. सर एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन सर. हाँ, सो हमने एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज लिया विच इज इन दिस पिंक कलर.
जिसका चार्ज डेंसिटी हमने कहीं डिनोट नहीं किया है, दैट चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। ठीक है। Now, to calculate flux, I need a Gaussian surface. So this blue color box, cylindrical box, that is Gaussian surface, which is cylindrical. Cylindrical Gaussian surface हमने लिया। ठीक है? Yes, sir. Now I calculated flux on all three surfaces. On top, I saw that electric field is in this direction and area is in this direction. So they are perpendicular to each other. So when electric field and area are perpendicular to each other, flux zero होता है। ठीक है? Yes, sir. सेकेंड केस में हम लोगों ने कर्व सरफेस, सिलेंडर का में 3 सरफेस होते हैं, एक टॉप, एक बॉटम, एक कर्व सरफेस। सो कर्व सरफेस पे हमने देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों पैरेलल थे। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों पैरेलल थे। सो इन केस ऑफ पैरेलल दोनों का प्रोडक्ट ही हमें फ्लक्स देता है। तो हमने सेकंड सरफेस पे भी फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया। फाइनली ऑन लोअर सरफेस सेम जैसे टॉप सरफेस का था वैसे लोअर सरफेस पे भी फ्लक्स जीरो आया। Yes, sir, because cos 90 becomes 0, no? cos 90 becomes 0। ठीक है। सो टोटल फ्लक्स आ गया, तीनों को ऐड कर दिया हमने। ठीक है। Yes, sir. नाउ according to Gauss law, according to Gauss law क्या कहता है कि total flux must be equal to charge inside divided by, होगा तो अंदर कितना चार्ज है, तो इनसाइड वी हैव ओनली दिस मच चार्ज, इतना ही चार्ज अंदर है, बाकी तो बाहर है। सो दैट विल बी एक्चुअली लैम्डा इनटू एल होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, दैट इज द चार्ज। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों को इक्वल कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। So from equation 1 and 2, E into 2 pi RL will be equal to lambda L divided by epsilon naught। ठीक है। So electric field due to infinite line charge, पर इसका यूज तो हम लोग एक बार पहले आज कर रहे थे किसी डाउट में, ये फॉर्मूला तो अब जाके निकला 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल और एल कैंसिल, सो दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है। So electric field due to infinite line charge is lambda divided by 2 pi epsilon naught r। इसको आप थोड़ा सा और अरेंज करना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 2 lambda divided by 4 pi epsilon naught r
which is equal to 2k lambda divided by, तो हमने k बना डाला 4 by epsilon, ठीक है। क्योंकि k की वैल्यू पुट करना आसान होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू पुट करने में दिक्कत होती है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। Done, sir. डन। Yeah. सर डायग्राम दिखाओ ना सर। टाइटल ही नहीं लिखा, डायग्राम। वो क्या लिखा है सर आपने? क्या लिख दिया मैंने? वो आर है ना सर वो डायग्राम में? डायग्राम के सेंटर में आर लिखा हुआ है। डिस्टेंस ऑफ, हमेशा डिस्टेंस के लिए तो आर ही कहते हैं। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द इनफाइनाइट लाइन चार्ज इज आर। सो जो क्वेश्चन आज हम लोगों ने सॉल्व किया था दैट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जिस भी डायरेक्शन में लाइन चार्ज होगा उसके परपेंडिकुलर ही होता है। सो लाइन चार्ज जो उस क्वेश्चन में था दैट वाज अलोंग वाई एक्सिस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक्स और सॉरी जेड एक्सिस था। सो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वाई और एक्स के डायरेक्शन में। कौन सा क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन जो तुमने आज पूछा था 160 और 120। Sir, it was question number 5 self test 2. ठीक है। Now in same series electric field near Questions कराओ ना। क्या तो questions दो ना सर, like PPT के। देंगे देंगे देंगे, पहले कर तो दे। इनफाइनाइट प्लेन चार्ज, इन दोनों टॉपिक में क्वेश्चन नहीं आते, बड़ा मुश्किल से मिलता है क्वेश्चन। ये दोनों ऐसे दो छोटे छोटे टॉपिक है। गॉस लॉ पे क्वेश्चन जब भी आएंगे वो डायरेक्ट आएंगे, उनके रिजल्ट्स पे नहीं आते। और एडवांस में कैसे आते हैं? मैंने एडवांस में क्वेश्चन पेपर डाले तो है शायद, नहीं डाला, चलिए वो भी डाल दूंगा आप लोग, डाउनलोड करके पढ़िएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब जो पढ़ना शुरू करेंगे गॉस लॉ के बाद क्वेश्चन वहां से आने शुरू होंगे। तो मतलब ये चैप्टर में एक भी क्वेश्चन नहीं आता था? मतलब आज बहुत ही रेयर आएगा, ठीक है, मतलब चैप्टर भी आधा ही हुआ है ना, तो अगला जो दो टॉपिक पढ़ेंगे ना उससे वो कौन क्वेश्चन सा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी? नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। if you are following NCERT बुक, अगला चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर होगा,
ठीक है, सर उससे उसमें भी इन सब चीजों का बहुत सारा एप्लीकेशन रहेगा ना हाँ सर? सर, वो हाँ, कैपेसिटर तो आता ही है। का यूज होगा उस टॉपिक में, पर इससे क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं। मोस्टली क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड कैपेसिटर। वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से उससे भी रहते ही हैं, थोड़े बहुत तो रहेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो अ चैप्टर दिस इज लाइक उसका यूज बहुत होता है, उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते क्योंकि वो तो 9th 10th में पढ़ा था ना, सभी जगह होता है। सर वो बहुत डिटेल में था, व्हाट आर पैरेलल सर्किट्स एंड और सीरीज सर्किट, और उसके दोनों मिक्स करके। तो 9th 10th में इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि अब तो उसका एप्लीकेशन ही आएगा, वो डायरेक्ट उसके क्वेश्चंस बहुत रेयर होंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफाइनाइट प्लेन चार्ज, लाइन चार्ज का तो देख लिया, अब की प्लेन चार्ज एंड ड्राइंग आई विल मेक लाइक दिस। इनफाइनाइट प्लेन चार्ज बनाना 3 डायमेंशनल हो जाता है, सो दिस इज इनफाइनाइट प्लेन चार्ज, ठीक है, इस तरह से आई कैन ड्रॉ इट and the charge density is sigma. Charge density is sigma, and we want to find electric field at a point P. Okay, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं at a distance r. Okay, so first thing we need to draw the Gaussian surface. अच्छा, Gaussian surface से पहले electric lines. This time the electric lines will be ड्राइंग में सेम है बट रियल में सेम नहीं होता है, इतना आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि ड्राइंग तो सेम ही बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे ना दोनों में डिफरेंस। पिछले का ड्राइंग और इसका ड्राइंग डिफरेंट होता है। पिछला ड्राइंग था दिस वाज अ लाइन, तो लाइन के चारों तरफ निकलेंगे, बट दिस टाइम दिस इज अ प्लेन, सो फ्रॉम प्लेन सरफेस ओनली 2 different side will be there, means only this side electric lines will be there, this side electric lines will be there, ठीक है ना, अभी you will not have this in all the directions. So we need to draw a Gaussian surface, so this time I will draw Gaussian surface, फिर से सिलेंडर ही ड्रॉ करते हैं, इस बार हम स्फीयर ड्रॉ करो। इस बार हम लोग चाहें तो कुछ और भी ड्रॉ कर सकते थे, बट सिलेंडर ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया था लास्ट टाइम, इसलिए सिलेंडर ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो हमने सिलेंडर ड्रॉ किया है जिसका लेंथ 2r हो जाएगा, दिस साइड इज r, दिस साइड आल्सो r, इसका रेडियस r, कैपिटल R, ठीक है, रेडियस कैपिटल R ले लिया। So a part of this will also be inside this. So फिर से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। On left plane surface, left side का plane surface, this surface, electric field direction is same as area direction. Hello, someone said something. Okay, so the flux will be E into area, होगा? So E is E, area will be how much? I r square. क्या लिख दिया into pi r square, ठीक है। आपने क्या लिखा है बोर्ड पर? क्या लिखा है? तो क्या लिखा है सर? ऑन व्हाट सर? लेफ्ट, on left plane surface, on curved surface, on curved surface electric field is always perpendicular to area, है ना?
So phi 2 will be equal to 0 होगा. On right plane surface, electric field is parallel to area. So flux 3 will be equal to E into R square ना. क्या तो बिल्कुल ऑपोजिट है ना पहले का. ऑपोजिट तो नहीं है, बट हाँ जिस सरफेस पे पिछली बार 0 हुए थे वहां इस बार वैल्यू है, और जिस बार जहां पिछली बार वैल्यूज थे वहां इस बार 0 है. डन. आगे के स्टेप्स आप लोगों को बताएंगे. इक्वेट Total करने. flux that will be phi is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3 will be equal to 2 E of pi r square. According to Gauss law, total flux will be equal to Q inside divided by epsilon naught. तो Q inside कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके, सिलेंडर के अंदर एक सर्कल होगा, तो सरफेस एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू सरफेस एरिया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 क्या हो जाएगा? 2E into pi r square is equal to sigma pi r square divided by epsilon naught. So which will give us E is equal to pi r square cancel, sigma upon 2.
डन। Yes. Electric field near charged surface, ठीक है। तो पिछली बार जस्ट एक चार्ज सरफेस था, दिस टाइम इट्स कंडक्टिंग चार्ज सरफेस। So for conducting charge surface, we know that electric lines will go only outside the surface. Inside it can't go. ठीक है? So if we have a conducting charge surface, the electric lines will go only in one direction, not in This other. was non-conducting charge surface. अभी तक जो किया है. लास्ट वाला जो किया था उसमें नॉन कंडक्टिंग था, ठीक है। सो नॉन कंडक्टिंग लिखते नहीं है, लेकिन जब भी कंडक्टिंग होगा इट विल बी रिटन देयर। और क्वेश्चन मोस्टली कंडक्टिंग, Can there be something like semi-conducting? सेमी कंडक्टिंग नहीं पढ़ना है, ओनली कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। सो फिर से एट ए पॉइंट वी हैव टू कैलकुलेट, सो वी विल ड्रॉ, Again cylinder draw करना पड़ेगा. सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, लिखना जरूर कीजिए। डू आई रियली नीड टू राइट समथिंग? सेम फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, फ्लक्स 1 0 हो जाएगा, सेम कॉपी कर लीजिए पिछले वाला, बस फ्लक्स 1 phi1 भी 0 होगा, बाकी सब सेम रहेगा, क्योंकि लेफ्ट सरफेस पे भी 0 है, लेफ्ट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। लिख दो ना सर। तो जस्ट खुद से कैलकुलेट कर लीजिए पिछला वाले का। अगर किसी पॉइंट पे कोई दिक्कत हो तो बताइए। कॉपी करने का। ऊपर वाला ये कॉपी पेस्ट करने का है क्या सर? विथ स्मॉल चेंज। तो क्या चेंज है? ये 0 हो जाएगा ना, और क्या 0 हो जाएगा? तो जहां जहां उसका यूज हुआ है सभी जगह पाई आर स्क्वायर बचेगा क्या? ई पाई आर। हाँ, ई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा बड़ा करो, सो बहुत छोटा है। तो आप कैमरे पे देख रहे हैं क्या? शेयर्ड भी तो है, शेयर्ड स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है। तो मैं किसी में चेंज कर देता हूँ नीचे वाले के। आप इसको कॉपी पेस्ट कर दो नीचे और फिर वो चेंज कर दो। मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूँ, कॉपी पेस्ट की क्या जरूरत है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स भी 0 होगा। जब ऐड करेंगे तो 2 will not be there, 2 will not be there and 2 will not be there, ठीक है। बाकी सब सेम रहेगा।
Done. ठीक है. So this was electric field due to. Sir, just a second, I'm doing so. Those who are new in this class, for those, all the 4 videos of last 4 lectures of this class is uploaded on YouTube, so you can watch it from there. Sir, oh na sir, build robot and create science. Sir, BRICS, no? BRIC. Yes. हाँ, so आप वहां से जाकर देख सकते. अच्छा सर, आपने सब recordings ले लिया. ठीक है. Done, sir. कहाँ थे हम लोग? ये हो गया. So questions में देख रहा था. If we have some questions. हाँ सर. Self test 2. No. तो हो गया. Self test 3. So कुछ questions करते हैं from notepad. It says electric charge are distributed in a small volume. The flux of electric field through a spherical surface of radius 20 centimeters surrounding the total charge is 50 voltmeter. The flux over the concentric sphere of radius 40 centimeter will be. ठीक है ना, नोटपैड का ये क्वेश्चन नंबर 1. तो उन्होंने कहा है कि कोई छोटा सा चार्ज है. कहाँ का है? Notepad self test 3, and it is closed inside a sphere of radius 20 centimeter. ठीक है, clear? So flux is given 50. So how much will be the flux passing through this sphere of radius 40? So you can see कि all the flux will start from the charge. So यहाँ से start होके जाएंगे, यहाँ से start होके जाएंगे, यहाँ भी से start होके जाएंगे. So both the surface will have exactly same flux. Is it clear? तो नहीं समझा. जो भी फ्लक्स यहां से चलेंगे, उन्होंने पूछा है कि इस पे जो फ्लक्स है वो गिवन है, या आप गॉस लॉ ही लगा लीजिए. फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस विल बी हाउ मच? होगा. एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस विल बी हाउ मच? सेम. तो फ्लक्स पासिंग थ्रू बोथ द सरफेसेस विल बी इक्वल, क्योंकि जितना चार्ज इसके अंदर है, चार्ज तो सिर्फ सेंटर पे रखा हुआ है, उतना ही चार्ज इसके अंदर भी है. सो दोनों का चार्ज इक्वल है, सो दोनों का फ्लक्स भी, दोनों का चार्ज इक्वल है तो दोनों का फ्लक्स भी इक्वल होगा. बाकी आप ठीक है, फॉर्मूला तो ओके है,
बट आपको विजुअलाइजेशन भी होना चाहिए कि जितने भी इलेक्ट्रिक लाइंस जा रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि इसको क्रॉस करेगा इसको नहीं क्रॉस कर सकता। इज इट पॉसिबल? नो। ऐसा भी नहीं है कि फर्स्ट स्फीयर को क्रॉस ना करे और दूसरे को क्रॉस कर जाए। सो ऑल द लाइंस विल क्रॉस बोथ द सरफेस। सो नंबर ऑफ लाइंस on both the surfaces will be equal. होगा ना? So same answer will be there. 50 volt. ठीक है? So Gauss law is something which makes things very simple. कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है। ओके, उन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग सिर्फ अप्लाई करते हैं और कैलकुलेशन से बच जाते हैं। ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? या अच्छा, जो नए वाले होंगे उनके लिए दिक्कत होगा, बाकी तो ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एनीवन ट्राई टू सॉल्व इट, देन आई विल एक्सप्लेन। So is the answer D? नहीं समझ। तो आप गॉस लॉ को भूल जाते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है? फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू इनसाइड है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट भी है, लेकिन वो तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में चला जाएगा। सो अंदर जितना चार्ज होगा उतना ही फ्लक्स होगा। ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत? ये बात तो समझ में आ रही है? No. कि अंदर जितना ज्यादा चार्ज होगा फ्लक्स भी उतना ज्यादा होगा, अंदर जितना कम चार्ज होगा उतना ही कम फ्लक्स होगा। सो अगर हमारे पास एक बॉक्स है and there is a rod like this, ठीक है? सो अगर इस रॉड स्टार्टिंग में हाउ मच चार्ज इज देयर इनसाइड बॉक्स? 0. नाउ इफ आई मूव दिस, so if I move this, मूव नहीं होता है क्या? कट करेंगे तो गायब हो जाएगा। I just want to move it. हाँ, मूव हो रहा है। ठीक है? So if I will move it like this, amount of charge is increasing. See? So amount of flux will also increase. So graph will also increase. But now you can see it's not increasing. The amount of charge is not Constant. है ना? या जितना से निकल रहा है उतना इधर से आ रहा है। So for some time it will remain constant, and now it is started decreasing. गॉट इट। तो graph will be D. यस तो क्लियर है ग्राफ D क्यों हुआ? First it is increasing, for some time it's constant and it decreases. इसमें फिजिक्स नहीं था ना सर? So whenever they ask physics question, physics से ज्यादा वो एनालिटिक्स पूछना चाहते हैं कि आप एनालिसिस कर सकते हैं सिचुएशन को कि नहीं।
नहीं, फिजिक्स तो था ही, विदाउट गॉस लॉ आप नहीं सोच सकते इसको, ओके, यू कांट जस्ट से कि फिजिक्स नहीं था, Odd one out. फिजिक्स के साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा होता है, और वो जो होता है एक्स्ट्रा वो कठिन नहीं होता है, वो बहुत लेंदी नहीं होता है, लेकिन उसको थोड़ा आपको सोचना पड़ता है, ठीक है, डन। हम all 15 कर रहे हैं ना सर, पूरा 15. देखते हैं जितना टाइम होगा हमारे पास उतना करेंगे। A square of side A is lying in a xy plane such that two of its sides are lying on the axis. If an electric field E naught x k is applied on a square, the flux passing through square is so this time we have to calculate flux. But electric field is not constant. See, electric field is a function of x, है ना? So whenever something is not constant, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। Differentiation. इंटीग्रेशन, हाँ मतलब ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो भी हो, so हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है? वो क्यों करते सर, हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते? जब भी आपको कोई चीज असेंबल करना हो, ऐड करना हो, काउंट करना हो, तो इंटीग्रेशन किया जाता है। तो यहाँ हमें टोटल फ्लक्स काउंट करना है, तो इंटीग्रेशन करेंगे। सो मैं कंप्लीट नहीं करूंगा सिर्फ। सो दिस इज द स्क्वायर and it's saying the square of side A lying on the xy plane such that two of its sides are on x axis. So this is the axis and this is the axis. Okay? And electric field is in this direction, perpendicular to this diagram. Perpendicular को draw कैसे करते हैं पता है? So when something is coming out of the paper, we draw it like this. ठीक है, lines, or something, if something is into the paper we draw it like this, ठीक है? So this represents inward and this dot dot represents outward. So हमें all 6 direction denote करना था ना, तो upward दिखाना तो आसान होता है, downward दिखाना आसान होता है, left right भी दिखा लेते हैं, but inward और outward दिखाने के लिए ये मेथड यूज किया गया, ठीक है? So flux is in this direction, but it is not same. Means at near the y-axis it is 0 and near z-axis it is have more flux are there. ठीक है? Okay, this side more flux are there, this side less flux are there. So I don't know कि एक बार में मल्टीप्लाई करके तो आएगा नहीं, यूनिफॉर्म होता है तभी हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते। So this formula will not work. इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट होना जरूरी है। So here we will do what we will do. Flux will be integration of d phi, और d phi किस चीज का निकालेंगे? Of this thickness at a distance x, distance thickness dx, उस thin एरिया का निकालेंगे। तो थिन एरिया का फ्लक्स कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू E, which is actually E naught x into एरिया। इसका एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इट टू विड्थ। सो लेंथ कितना है? dx. नहीं वो तो विड्थ है dx। Oh sorry, yeah. X no sir. 2x. A दिया है, A into dx, ठीक है? इंटीग्रेशन कहां से करेंगे? 0 से लेके a तक। सो 0 से लेके a तक। सो दिस विल बी इक्वल टू E नॉट a, ये तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? x dx। सो x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2। एक लिमिट जब 0 हो तो डायरेक्ट दूसरा लिमिट पुट कर देता है। सो इट विल बी
E naught A cube by It's not visible, sir. Everything. Please use some. आप शेयर्ड स्क्रीन पे देखिए ना, सब दिखेगा। नहीं सर, उसमें ही ऐसा लिख रहा है, बहुत वियर्ड लग रहा है। रेड कलर इसलिए यूज करना होता है। चलिए इसमें देख लीजिए अगली बार से रेड कलर यूज करना है। ठीक है। Yes, sir. How did you get a square? A cube, sorry. एक पहले से भी है और एक्स स्क्वायर के लिए पुट किया तो एक स्क्वायर। लिमिट पुट करेंगे ना, जीरो पुट करने से कुछ होना नहीं है, इसलिए सिर्फ ए स्क्वायर पुट करेंगे। A cube के अच्छा समझा सर। I didn't understand. 12:15 तक है, पता नहीं, मैंने टाइम देखा। Class is till 12:30. पता नहीं, मैंने इसको अपडेट कर लिया तब से चलना ही करते। ट्वेल्व 30 लिखा है, 4 समझाओ ना सर, वो डिफरेंशिएशन में क्या किया? इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया। इंटीग्रेशन लगता है याद नहीं। ये स्टेटमेंट तक समझ में आया? हाँ सर। तो इसके आगे क्या दिक्कत है? अब तो हो गया। बट वो x square by 2 है ना सर, फिर वो कैसे a cube आया? लिमिट पुट करेंगे ना, लिमिट पुट करना नहीं सीखे हैं? Yes. तो लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। लिमिट वाला सिखाया गया है। लिमिट का फिजिक्स में हमेशा लिमिट ही मिलेगा, बिना लिमिट का फिजिक्स में तो बहुत रेयर मिलेंगे, एक आध क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन मतलब आएंगे तब मिलेगा, अदरवाइज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स पेपर में। और क्या, जेई में तो भर भर के आए, नीट में भले ना आए, जेई में क्यों नहीं आए, नीट में भी आते हैं एक्चुअली। गया क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोग खुद से कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आई विल एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसको इरेज कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 यू फर्स्ट ट्राई देन आई विल एक्सप्लेन। थोड़ा ज्यादा एनालिटिकल है, तो ज्यादा एनालिसिस मैं ही कर दूंगा तो आपको शायद समझ में नहीं आए, पहले आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, देन यू विल सी। ये क्या है सर? फिफ्थ वाला हम लोग को ट्राई करना है सर। हाँ, फिफ्थ वाला ट्राई करना है, ट्राई कीजिए देन आई विल एक्सप्लेन। चौथा वाला आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, देन नेक्स्ट क्लास में आई विल।
रिकॉर्डिंग बंद कर दो। रिकॉर्डिंग बंद करने का ऑप्शन नहीं है।